হরিজন মল্লিক মহাসংঘের পক্ষ থেকে পালন করা হলো শ্রী শ্রী সুদর্শন মহারাজের জন্মতিথি। প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও অল ইন্ডিয়া হরিজন মল্লিক মহাসংঘের পক্ষ থেকে পালন করা হলো শ্রী শ্রী সুদর্শন মহারাজের জন্মতিথি। এদিন শ্রী শ্রী সুদর্শন মহারাজের মূর্তি নিয়ে ফিরিশপুরের রামলীলা মাঠ থেকে পদযাত্রা করে পদ্মপুকুর পার্ক সার্কাস 7 পয়েন্টে হাজির হয়ে মল্লিক বাজার হয়ে এন্টালি মার্কেটে শেষ হয় পদযাত্রা। এরপর এন্টালি মার্কেটে তার মূর্তি স্থাপন করে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মতিথি পালন করা হয়। অল ইন্ডিয়া হরিজন মল্লিক মহাসংঘের সভাপতি সুবল মল্লিক বলেন, তাদের যেন সমাজ সম্মান দেয়, তারা দলিত বলে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে যেন না থাকে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন সবাইকে সমাজে নিয়ে চলার কথা, তাই ওনার কথাকেও পাথেয় করে সমাজে মাথা তুলে বাঁচতে যাওয়ার কথাই বলা হয়। শুধুমাত্র দাহ কাজে নয়, তারা সবসময় মানুষের পাশে থাকতে চায়। आप तैयारी करिए। मैं ऑल इंडिया हरिजन मल्लिक महासंघ का प्रेसिडेंट डॉक्टर सुबोध मल्लिक बोल रहा हूँ। आज जो 5311वां जन्म दिवस हम लोग स्वपन सुदर्शन जी महाराज का, जो दलित समाज के पर्टिकुलरली डोम समाज के कुलगुरु हैं, उनका जन्म दिवस मना रहा हूँ मैं। ये आज से नहीं बल्कि 1980 से हम लोग मनाते आ रहे हैं और ये शोभा यात्रा हमारा जो है 216 से लगातार हो रहा है। और हम लोग जो है आज के दिन कुलगुरु को याद करते हैं, उनके उपदेशों को याद करते हैं और समाज के लोगों को जुटाकर और भी कई सामाजिक जो हमारी समस्याएं हैं उनको भी रखता हूं मैं, उनसे उनका राय विमर्श लेता हूं। और इसमें हमारे जो है विभिन्न समाज के लोग, आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और आपको बंगाल का जितना भी है, सिलीगुड़ी, बर्धमान, सारी जगह के जो है पर्टिकुलरली डोम कास्ट जो है, शेड्यूल कास्ट में जो आते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पे। और हम लोग जो आज के दिन सब मिल करके गुरु जी का उत्सव मनाते हैं और समाज के विभिन्न समस्याओं पर कुछ समय लेकर हम लोग विचार करते हैं कि हम लोग का डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समाज में हम लोग को डाउन ट्रोडन पीपल के नाम से जाना जाता है, पीछे पड़ा मानुष बंगाली में लोग कहते हैं। वी वांट द डेवलपमेंट ऑफ दिस कास्ट बिकॉज दिस पर्टिकुलर कास्ट इज मोस्ट बैकवर्ड फ्रॉम द रिमोट पास्ट टाइम एंड देयर डेवलपमेंट इज द जीरो इवन नाउ। Somewhere we are somewhat developed. It may be possible, it may be sure, but now in this case I want to say that our caste is most back, but we want to promote their educational development, economical and cultural development is our motto. Our All India Harijan Mahasangh is already work on this program. The particular dome caste, those who are very, very backward in the society, we want to around development of their cultural, social and economical development. For there, we are working for this. And I want to say also a fact that we have got many help from the last 5 years from our beloved Chief Minister, Mr. Mamata Banerjee, have giving us some assistance to promote us. And whenever we get any problem before her, she hear this. And we have also produced 13 point our demands to the beloved our Chief Minister, and this 30 points among that there was our school and the dome post is very medical college and hospitals are now vacant. We request to the government to fulfill this, and we happily say that many colleges and many medical colleges are fulfilled by dint of the government helps. We are much satisfied with this government, and also we are working for our communities. I hope that coming government will also help us. This is our motto and we are going ahead for this.
आज अप्रोक्स तो 1500 तो 2000 के करीब लोग थे। और इस रैली का हम लोग का मेन मोट्टो है कि इतिहास में जो आज भी जो हमारे जो जाति का जो एक अस्तित्व है वो खोया हुआ है और कहीं ना कहीं हम लोग उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। एक इतने बड़े कुल गुरु सुपन सुदर्शन जी महाराज जो महाभारत काल के द्वापर युग में पैदा हुए थे और पांडवों का यज्ञ को उन्होंने सफल किया था। तो मैं कहना यहाँ पे ये चाहूँगा, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि हम लोग जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं पूरे भारतवर्ष में हमें नीचा दिखाया जाता है। अगर आप सही तरह से अगर माइथोलॉजी पे जाए, जिस तरह से भी हिंदुस्तान में चल रहा है, माइथोलॉजी के हिसाब से जाए तो वी आर द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदुइज्म बिकॉज वी आर डोनेट द बर्न टू द डेड बॉडी अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म। तो ये हम लोग का जो मेन जो चीज़ है, आज भी हम लोग जो है हम कहते बार बार कि खुदा तू बता, आज भी मैं ढूंढ रहा हूँ अपने इतिहास के पन्ने में सटीक अता पता है खुदा तू बता। तो आज हम लोग जो गुरुजी की इस रैली से ये दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान में कि हमारे जो कम्युनिटी है आज भी हिंदुस्तान के कल्चरल में भी जुड़े हुए हैं, इसकी संस्कृति में जुड़े हुए हैं, धर्म से भी जुड़े हुए हैं। और साथ में जो हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है राजनीतिक कारण से, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, उस पर हम लोग फोकस करना चाहेंगे। अभी एक रिसेंट एक घटना हुई है जो कॉरपोरेशन में डोम पोस्ट की वैकेंसीज थी, जिसमें 2 बंदे जो है अदर कास्ट के, जनरल कास्ट के हैं। एक है आपका कोई मंडल है और एक बोस है। तो आप एक तरफ कहते हो कि अगर कहीं कोई मरता है हॉस्पिटल पे तो कहते हो कि डोम जो है उसको बुलाओ, तो एक तरफ आप टैग लगाते हो, दूसरी तरफ आप लैब अटेंडेंट बात बोलते हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें जो रिजर्वेशन कोटा से जो भी हमारी कम्युनिटी को जो दिया जा रहा है वो हम लोग को चाहिए और इसको हम लोग को करना चाहिए। तो इसीलिए मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी से, और हमारे जो साथ में जो हमारे जो मुख्यमंत्री है वो हमेशा कहते हैं कि पीछे पड़ा मानुष के सूंघे नहीं चलो। उनसे बहुत सारा हेल्प मिला हम लोग को, उनकी वजह से आज बहुत सारा हॉस्पिटल्स में जो हमारे जो डोम पोस्ट है वो हमें मिल रहा है। तो उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि ये चीज़ देखे। और साथ में हमारा कुल गुरु जो है सुपन सुदर्शन जी महाराज, ये द्वापर युग के हैं, आज भी इनको इतिहास में जानना चाहिए, हर लोगों को तरफ जानना चाहिए। आज भी बड़े कोर्ट में देखेंगे गीता पे, पवित्र गीता पे हाथ रख के कसम खिलाया जाता है और उसी पवित्र गीता पे एक अछूत का विवरण दिया गया है। तो हम अछूत नहीं है, हम हिंदू धर्म के एक बड़े पैमाने पे खड़े हैं। और ख़ास तौर से डोम कम्युनिटी, इसलिए मुझे गर्व है कि मैं हिंदुइज्म को प्रेजेंट करता हूँ। अगर कोई मरता है तो उसको आग हम देते हैं, दूसरा कोई नहीं देता। तो ये मेरा गर्व है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी से कि इसको इतिहास से उठाए। इतने बड़े गुरु हैं हमारे कुल गुरु सुपन सुदर्शन जी महाराज, जिनकी आज 5311वीं जन्म जयंती हम पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। इनका एक मंदिर भी है बनारस में। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा, आवेदन करूँगा कि इस महापर्व को धूमधाम से मनाइए, गर्व से मनाइए और सारे जोर से बोले सुपन सुदर्शन जी महाराज की जय। तो आज इस दिन में आपने क्या क्या आयोजन किया है? और आज के दिन में हम लोग जो है गुरु जी के प्रचार प्रसार पे लगे हुए हैं। साथ में हम लोग जो है कुछ अपना सोशल मुद्दा है जो समाज के सामने रखना चाहेंगे। कि जैसे हम लोगों में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है बहुत सदियों से कि शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें बहुत दिक्कत पेश आती है। आप ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। तो हमारा एकमात्र संस्था है ऑल इंडिया हरिजन मल्लिक महासंघ, जो 40 साल पुराना रजिस्टर्ड संस्था है। तो मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसको अप्रूव करे, ताकि हमारे जो भी लोग जो हमारे कास्ट के हैं उसको सर्टिफिकेट के लिए अगर अप्लाई करे तो उसको मान्यता मिले। ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है क्योंकि हमें जब रिजर्वेशन दिया गया तो उनको अधिकार भी मिलने चाहिए। हर साल होता है तो नेक्स्ट ईयर भी होगा, तो ऐसा ही होगा या इससे भी बड़ा होगा? मैम, इससे बेहद मतलब हम लोग आंदोलन आयोजन करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अब भारत के हर कोने में फैल चुका है। और जैसे मेरे भाई साहब और इसके पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया कि हम लोग हिंदुज़म की नींव हैं, चाहे वो सुपन सुदर्शन महाराज हो या वाल्मीकि जी हो। तो अगर वाल्मीकि जी नहीं होते तो रामायण नहीं होता, और सुदर्शन जी नहीं होते तो आज जो गाथा है वो नहीं होती। तो जो इस तरीके से हमारे पूर्वजों को अवहेलना किया गया है, उनको पीछे रखा गया है, आज हम लोग जय श्री राम का नारा लगाकर उत्साहित होते हैं, क्योंकि अगर वाल्मीकि नहीं होते तो राम जी पैदा ही नहीं होते। तो इसलिए हम लोग जो हमारे पूर्वज हैं, कुल गुरु हैं, हम लोग चाहते हैं कि इनका प्रचार प्रसार बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए, प्राथमिक शिक्षा से उनको ज्ञान दिलाया जाए, क्योंकि हम लोग इन महापुरुषों की जीवनी से उनको अंधकार में रखे हैं। और मीडिया से गुजारिश है कि जो सबसे दलित और पिछड़े लोग हैं, इनकी आवाज़ को आप लोग उठाएं। और आपसे बेसी आशा है, क्योंकि आज हमारे ही कौम से, हमारे संगठन को देखते हुए, महादलितों को देखते हुए हमारे तरफ से बबन रावत जी को राज्य मंत्री बनाया गया है।
भारत सरकार में वो सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। और हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी राज्य सरकार यहाँ पर सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करे। अगर इस बार जो भी राजनीतिक पार्टी हम लोग को तवज्जो नहीं दी तो हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग उसी को वोट करेंगे जो राज्य में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करेगा। ये बात हम लोग आज कुलगुरु जी के जयंती पे हम लोग आह्वान करते हैं और हम लोग हमारा सारा वोट उसी को जाएगा जो हमें आयोग बनाकर देगा। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रघुनाथ हेला, राष्ट्रीय प्रवक्ता महादलित परिसंघ। हम आशा करते हैं जो भी सरकार हमारे आए, हम मल्लिक समाज को भी तो कुछ ऐसा दर्जा दे ताकि हम भी आगे बढ़े और हमारा जो पीढ़ी है जो बहुत पीछे रह गया उसको भी आगे बढ़ाए। मैं निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के, जो भी आए हमारे ये उपकार जरूर से ज़रूर करें। हमारे अखिल भारत हरिजन मल्लिक महासंघ के द्वारा जो आयोजित है 5311 संत शिरोमणि सुपन सुदर्शन जी महाराज के जो जयंती में जितने भी लोग हमारे कलकत्ता के जितने भी संस्था है जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं, उनको महासंघ के जितने भी कार्य समिति सदस्य हैं उनका आंतरिक हृदय से बहुत ही शुभेच्छा जनाते हैं, जो जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इस शोभा यात्रा को सफलतापूर्वक आज यहाँ तक पहुँचाया है। सबसे पहले तो आज जो सुपन जयंती जो मनाया जा रहा है उनका कुछ विशेषता है। बहुत सारा विशेषता क्या है कि बहुत सारे लोग तो अपने घरों में महाभारत देखे हैं, लेकिन महाभारत में दिखाया गया है कि कैसे कौरव पांडवों में युद्ध हुआ, लेकिन पांडवों को नींद नहीं आता था। लास्ट में उन्होंने महायज्ञ किया। महायज्ञ करने के बाद भी वो लोगों को स्वप्न आने लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तब जा करके वो श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण के पास गए तो बोले, अरे तुम लोग तो एक संत को छोड़ दिए, वो संत शिरोमणि सुपन सुदर्शन जी महाराज हैं। तो बोले ठीक है भाई, उनको भी लेके आइए। महाआयोजन किया गया, महायज्ञ किया गया। भीम अपने आप घमंड में चकनाचूर था वो, ठीक है, लेकिन वो लेके आए, उनका भी घमंड चूर हुआ भीम जी का। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों का जो संत शिरोमणि सुपन सुदर्शन जी के द्वारा वो महाप्रसाद भोग करने के बाद ही वो पांडवों को मुक्ति मिला। तो सोच लीजिए हम लोग किस कुल का है, किस युग का है। आज हमें गर्व होता है कि हम इस मंच पे खड़े हैं, वो हमारा कुलगुरु संत शिरोमणि सुपन सुदर्शन जी महाराज है। एक बार जोर से नारा लगाइए, संत शिरोमणि सुपन सुदर्शन महाराज की। मैं प्रविंदर मल्लिक, अखिल भारत हरिजन मल्लिक महासंघ का कोषाध्यक्ष। धन्यवाद। वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से आए हैं, भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ के राष्ट्रीय सचिव हैं। मैं कहने का वक्तव्य यही है कि हमारे जो डोम जति हैं, जो अभी भी अत्याचार शोषण वो हो रहे हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं हम लोग को डोम जति को अच्छा दर्जा दिया जाए और जो रघुनाथ जी बोल के गए हैं राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए, ताकि हम लोगों को भी स्थान प्राप्त हो। हम लोग को जो सफाई कर्मचारी पर अत्याचार शोषण हो रहा है उसका कम से कम ये सरकार देखे। और हम लोग की जनसंख्या पूरे भारतवर्ष में 30% है, 30 से 40% हम लोग की जनसंख्या है। तो हम पूरे सरकार को, केंद्र सरकार को भी बोलेंगे कि जितने हमारे दलित में पढ़ते हैं, मल्लिक डोम जितने ही पढ़ते हैं, सुपन राम, उन लोगों को अच्छे नज़र से देखा जाए। मैं यही गुजारिश करूंगा और आप लोग इसको प्रचार प्रसार करें कि हमारे जति में कितने अत्याचार हो रहे हैं। इसको आप लोग प्रचार प्रसार करें और सुदर्शन जी के बारे में ज़रा आप लोग बताएं। ये हरिजन मुल्क ने आपका साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा आपका साथ रहता, ये हम लोग का देखा हुआ है और सभी को मालूम है। जब पीजी हॉस्पिटल से भी आपका रैली निकलता तो ऐसी हिसाब से निकलते, इसके लिए आप क्या बता रहे, थोड़ा बताइए। पहला बात, मैं श्याम मल्लिक, ऑल इंडिया हरिजन मल्लिक महासंघ के वाइस प्रेसिडेंट। आज हमारे जो समाज के, मल्लिक समाज के जो कुलगुरु है, उनका जयंती मनाया जा रहा है 5311वां। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक विशाल रैली का आयोजन किए हैं। और ये गुरु पूजन जो है, ये सिर्फ गुरु पूजन ही नहीं, इसके माध्यम से हमारे समाज जो सोए हुए हैं उनको हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने समाज को संगठित, एकत्रित करने का ये हम लोग का प्रयास है। और जिस तरह से आज हमारे समाज के ऊपर, आज हमारे मल्लिक समाज के ऊपर जिस तरह से कई तरह का शोषण हो रहा है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे जातिवाद का भेदभाव हो, ऐसे बहुत तरह समस्याएं हैं जो हम लोग को ऊपर में अत्याचार किया जा रहा है। तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है गुरु पूजन के साथ साथ अपने समाज को जोड़ना, अपने समाज को संगठित करना और हमारे मल्लिक समाज को एक मजबूत कर एक ऊंचे स्तर पर ले जाना। और हमारे ऊपर जो अत्याचार, जो जुल्म, जो शोषण हो रहा है, ये आंदोलन के माध्यम से उनको रोकना, ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। और हमारे जो नवजुवक भाई बच्चे जो लोग हैं, जो आज शिक्षित होकर भी
रोजगार के लिए वो यहाँ वहाँ भटक रहा है। कुछ लोग 3000 4000 नौकरियों के लिए सफाई कर्मचारी में दर दर भटक रहा है। तो इनको बराबरी का हक दिलाने के लिए ये हमारा समाज को एकजुट होना है और उनका ये हक को दिलाना है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हो कि सफाई कर्मचारियों के ऊपर किस तरह से अभी अत्याचार हो रहा है, उन लोगों को समय पर सैलरी नहीं दिया जा रहा है और कोई तरह का सुख सुविधा नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए भी हम मल्लिक समाज एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और हमारे इस मल्लिक समाज ये सफाई कर्मचारियों को जो उनका बराबरी का हकदार है, जो उनका अधिकार है, उनको हम लोग दिलाएंगे। ये हमारे गुरु पूजन के माध्यम से ये हम लोग ऐलान करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु सतन महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवता देवी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बहुत साल के बाद अपने मल्लिक समाज में जो गुरु को देख पा रहे हैं, सौभाग्य की बात है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे गुरु का नाम और आगे आए और मल्लिक समाज का नाम आगे आए। और हम लोग जो महिला जुड़े हुए हैं इनके संग में, अपने समाज के संग में उठना चाहते हैं। हम लोग भी अपना हक चाहते हैं कि हम लोग अपना मल्लिक समाज के लिए कुछ आगे बढ़ें। और